নমস্কার, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক থেকে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। জাটিঙ্গা লামপুরে রেলওয়ে লাইনে ভূমিধস পরিদর্শনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম। কয়েকদিন ধরে পাহাড়ি লাইন জাটিঙ্গা লামপুর ট্রেকে ধস পতনের ফলে রেল পরিষেবা বন্ধ। ধস পতনের ফলে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। মাটি সারাইয়ের কাজে লাগানো হয়েছে প্রায় 2 শতাধিক শ্রমিককে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সারাইয়ের কাজ চলছে। পরিস্থিতি সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রেলওয়ে বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব জানান, জনসাধারণের যাতায়াত পরিষেবার কথা মাথায় রেখে তীব্র থেকে তীব্রতর গতিতে রেলওয়ে ট্রেকের মাটি সারাইয়ের কাজ চলছে। প্রায় 15টি এক্সকেভেটর দিয়ে দিনরাত চলছে ধস সারাইয়ের কাজ, কিন্তু পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির জন্য কাজে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে আগামী সোমবারের মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। রেলওয়ে বিভাগের প্রত্যেক কর্মীকে দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেলওয়ে লাইনের উপর থেকে মাটি ও পাথর সরানো হচ্ছে। ধস পতনের পর বিভাগীয় কর্মীদের তৎপরতায় খবর পেয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা গুয়াহাটিতে বৈঠক করে তড়িঘড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। যাত্রীদের নানাভাবে বোঝানোর পাশাপাশি প্রত্যেকের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দূরপাল্লার বেশ কয়েকটি ট্রেন পরিষেবা বাতিল করে দেন। পাশাপাশি যাত্রীদের টিকিটের 1 কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে রেলওয়ে বিভাগ। যাত্রীদের সফল যাত্রা প্রদানে ভারতীয় রেলওয়ে বদ্ধপরিকর। বর্তমানে গোটা রেলওয়ে বিভাগ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। আগামী 2 থেকে 3 দিনের মাথায় রেলওয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব। তবে রেলওয়ে প্রোটেকশনের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে প্রায় 1 মাস সময়সীমা লাগবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ধস সারাইয়ের পর 100 মিটার পথ দিয়ে যেসব ট্রেন বের হবে সেগুলো ধীরে চালানো হবে এবং 100 মিটার অতিক্রম করার পর ট্রেন স্বাভাবিক স্পিডে চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি জিএম। আরো জানান, লঙ্কা থেকে ময়নারবন পর্যন্ত 160 কিলোমিটার লাইনের সার্ভে চলছে। রেলমন্ত্রী এসে জায়গা নিরীক্ষণ করে গেছেন। এটি ভারতীয় রেলওয়ের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা, যা নির্মাণ করতে 30,000 কোটি টাকা ব্যয় হবে। শীঘ্রই অর্থ মঞ্জুর হবে এবং আগামী 5 বছরের মধ্যে লঙ্কা থেকে ময়নারবন পর্যন্ত 160 কিলোমিটার রেলওয়ে লাইনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন জিএম চেতন শ্রীবাস্তব। বর্তমানে ধস সারাইয়ের কাজ জোর গতিতে চলছে। খুব শীঘ্রই মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা সহ বরাকে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে বলে এদিন আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। গত কিছুদিন পূর্বে মহিষাসনের জনগণ তাদের কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। জনগণের সেই দাবি পূরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সরকারের সহায়তায় শীঘ্রই স্থানীয়দের সমস্যার সমাধান হবে বলে ওই দিন জানিয়েছেন জিএম চেতন শ্রীবাস্তব। এদিকে পাহাড়ি এলাকায় অবিরাম বর্ষণে ফলে সড়ক পথেও বিঘ্ন ঘটেছে। শিলচর হাফলং সংযোগকারী সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে ধসপতন অব্যাহত রয়েছে। মুষলধারা বৃষ্টিপাতের ফলে মারুয়াছড়া ও টিবং সহ বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে শিলচর গুয়াহাটি যাতায়াত পরিষেবা। সড়ক পথে ভূমি ধস পড়ায় প্রভাব পড়েছে মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যে। সড়কের উপর পণ্যবাহী লরি লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বাহন চালকদেরকেও দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এদিকে সড়কে জমে থাকা মাটি ও পাথর সারাইয়ের কাজ চললেও বর্ষণ অব্যাহত থাকায় ধস পতন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন বিভাগীয় কর্মীরা। লাগাতার ধস পতনের ফলে সড়ক ও রেলপথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল বর্তমানে প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভোগে নাজেহাল মানুষ প্রহর গুনছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার। तो रिस्टोरेशन काम आप देख रहे हैं, करीब 15 एक्सकेवेटर लगे हैं और राउंड द क्लॉक काम चल रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, आप 2 बजे भी आके देखेंगे काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बारिश तेज़ हो जाती है, समझ रहे हैं। बारिश तेज़ हो जाने से मग को निकालना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। तो यदि वेदर हमारे साथ फेवरेबल है तो लेटेस्ट, मैं अर्लीस्ट नहीं बताऊँगा, लेटेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं मंडे को ट्रेन यहाँ से चलाऊँ। वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक्सपेक्टेड है कि संडे इवनिंग तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि केवल मक रिमूव करने से फिट हो जाएगा ट्रैक, ये बात नहीं है। क्योंकि मक निकाल देने के बाद, ये मक निकलते निकलते संडे लगेगा, ये निकल जाने के बाद जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है वी डोंट नो। ये निकालने के बाद समझ में आएगा कि वो और स्लाइड तो नहीं करता। और ये कब कंफर्म होगा? यदि रेन उसके साथ में हो गई तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ट्रेन हम जब भी चलाएँगे, हमें तो 0% रिस्क चलाना है। हम कोई भी रिस्क लेकर के कि हमने 5% या 10% रिस्क लेकर के गाड़ी चलाई, ऐसा तो हम नहीं कर सकते।
क्योंकि जब हुआ था ये इंसिडेंस में, जो लाइन पे हमारे ग्राउंड लेवल स्टाफ हैं, ट्रैकमैन है, वॉचमैन है, ये उन्होंने बचाया एक्सीडेंट, उन्होंने बताया टाइमली कि ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ तो ये और कोई तरीके से पता नहीं लग सकता था। ट्रेन जाती और जिस तरह से हुआ था कोई बड़ा एक्सीडेंट होता और हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते, लेकिन लोगों ने टाइमली इसको अलर्ट किया और हम लोगों ने शाम को ही 5 बजे ट्रैफिक बंद कर दिया और उसके बाद ही रात को 7, 8, 9, 10, 11 पूरा रात भर हम लोगों ने वीडियो देखा। इतना मक निकल के आया है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट, जो कि नॉर्मली यहाँ सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन रात से निकलती हैं, तो वो एक एक्सीडेंट बच गया। और हम लोगों ने जब ट्रेन कैंसिल करी थी तो यात्रियों को भी बड़े अच्छी तरह समझाया। 5 लोकेशन पे हम लोगों ने मे आई हेल्प यू काउंटर रखा था और ट्रेन हम लोगों ने गुवाहाटी में डिसाइड किया कि गुवाहाटी में टर्मिनेट करेंगे, लमडिंग जैसी जगह ला के नहीं करेंगे। किसी पैसेंजर को रास्ते में स्टैंडर्ड नहीं छोड़ा। 1 करोड़ रुपए का करीब करीब हम लोगों ने रिफंड किया है और सारे लोगों को हमने यही समझाया कि हम आपको सेफली ट्रैवल कराना चाहते हैं, किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं कि आपको रिस्क में लेके जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाए। तो सारे पैसेंजर ने समझा कि ये ऑलमोस्ट रेलवे की इसमें ज़्यादा गलती है नहीं, आप लोग देख रहे हैं, सबको पता है क्या हुआ है। तो लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो मैं सारी पब्लिक से भी रियली बहुत अंदर से धन्यवाद सबको देता हूँ। और ये समय बहुत कठिनाई का है, 2-3 दिन की बात है, हम लोग अपना काम कर लें पूरे सेटिस्फेक्शन से और जैसे मैं कह रहा हूँ 0% रिस्क में आ जाएं। थोड़ा सा बारिश भी हो जाए तो होपफुली मंडे को आप सोच सकते हैं लेटेस्ट कि हम गाड़ी एक चलाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन वर्क है ये अभी चलता रहेगा। हमें कम से कम 1 महीना लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी हैं, ऊपर उनको रोड बनानी है, रोड भी जो बनानी है हमसे अभी डिस्कशन हुआ है। एक NIT सिलचर के प्रोफेसर, हमारे चीफ ब्रिज इंजीनियर और NHI DCL के जो इंचार्ज हैं, वो लोग मिला के एक ड्राइंग अभी बनाएंगे। हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं कि पक्की रोड बने जिससे ट्रैफिक को आगे इस तरह का नुकसान ना हो, वो एक ड्राइंग बन के कल तक वो भी डिसीजन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से रोड का काम भी वैसे चालू है, लेकिन जो अलाइनमेंट जो रिस्की वाले 100 मीटर है उसी का डिसीजन हो रहा है। जब तक उन्होंने काम तो रोड बनाने का भी चालू कर दिया है, तो रोड भी बन जाएगी उसी के साथ साथ। और लेकिन रेलवे का प्रोटेक्शन का काम महीना भर और चलेगा। तब तक जितनी भी ट्रेनें यहाँ से निकलेंगी हमको थोड़ा एहतियातन निकालना पड़ेगा, कॉशन लगा करके। हो सकता है शुरू में हम ट्रेनों को स्टॉप एंड स्टार्ट करें, 100 मीटर का पैच है, गाड़ी आएगी, रुकेगी, सब कुछ सेफ़ है, देखेंगे, फिर गाड़ी 100 मीटर का पैच क्रॉस करेगी, फिर नॉर्मल स्पीड में जाएगी। देखिए ये सिंगल लाइन सेक्शन है और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस सिंगल लाइन सेक्शन में इसी अलाइनमेंट में मीटर गेज का रूट था, उसी के ऊपर ये ब्रॉड गेज वाला बनाया गया है। और मीटर गेज के लिए ये रूट सही था क्योंकि ट्रेन हल्की होती है, लोड कम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रॉड गेज बना, ट्रैफिक बढ़ा, नंबर ऑफ़ ट्रेन बहुत बढ़ गई, तो उतना सक्षम ये ट्रैक उसको लेने के लिए नहीं है। तो इसके लिए डबलिंग वाला ऑलरेडी प्रोजेक्ट सर्वे चल रहा है, करीब करीब 160 किलोमीटर का है। वो कौन से स्टेशन पे आना है? लंका से मोइनारबंद। ऑलरेडी रेल मंत्री भी आए थे फरवरी में, उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया, इसको सबसे समझते हुए कि लंका से मोइनारबंद एक नया प्रोजेक्ट होगा ब्रॉड गेज का, 160 किलोमीटर की लाइन होगी। तो वो मेनली वो बनने के बाद हम लोग सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से चलाएंगे और प्रिडोमिनेटली गुड्स ट्रेन यहाँ से चलाएंगे। जब समय प्रॉब्लम होगी तब इस रूट से चलाएंगे। देखिए ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 160 किलोमीटर का है, आप समझ रहे हो, उसमें भी टनल्स भी काफ़ी आएंगी। और वो प्रोजेक्ट 5-10 हज़ार करोड़ का नहीं, जो हम लोगों का एस्टिमेट है करीब 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन वो रेल मंत्री जी को मालूम है और जितनी नॉर्थ ईस्ट की इस गवर्नमेंट में प्रायोरिटी है, हमको बहुत अच्छे से एश्योरेंस दिया गया है, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी सर्वे की स्टेज में है, अलाइनमेंट फिक्स होगा, काम चालू होगा, 5 साल तो लगेगा 160 किलोमीटर का जहाँ टनल बनानी है। लेकिन हाँ, आपने परमानेंट सोल्यूशन की बात की थी, तो परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा चुका है और उसमें काम चालू है। सर अभी यहाँ का जो इसकी तो खबर सारे लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे लोगों को मुझे जवाब देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हम काम में कोताही करें। काम हमारा आपने देखा, मैं खुद वहाँ से आया, पूरी टीम यहाँ 24 घंटे लगी हुई, काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। बाकी हम समझते हैं मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नॉर्थ आसाम का सिलचर एरिया डिस्कनेक्टेड है, पैसेंजर्स की तकलीफ हम समझ में आ रही है, लेकिन हम
वही आपको कहा कि जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन सेफ ट्रैवल हमारी प्रायोरिटी है और रिस्क लेना।